سیلاب کے دریاؤں میں طغیانی کی صورتحال برقرار. دریائے ستلج گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,53,000 کیوسک ہے. دریائے چناب میں خان کے ہیڈ ورکس کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,20,000 کیوسک ہے. دریائے راوی شاہدرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 60,000 کیوسک ہے. چناب کا بڑا سیلابی ریلا رنگپور پہنچ گیا. سیلابی پانی سے رنگپور کے 24 دیہات متاثر. 3 گاؤں مکمل ڈوب گئے. بیٹ کے علاقے کی رابطہ سڑکیں اور فش فارمز بھی زیر آب آ گئے. دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ. سیلابی ریلا آج شام ہیڈ محمد والا پہنچنے کا امکان. کمشنر ملتان کے مطابق ہیڈ محمد والا کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. سیلابی ریلے کے بہاؤ کو دیکھ کر بند توڑنے کا فیصلہ کیا جائے گا. جو 2 منزل کا نا گھر پیچھے وہ پورے ڈوب گئے ہیں. جو آگے 1.5 منزل یا 2 منزل بنا ہوا نا وہ آدھا ڈوبا ہے. ابھی تک پانی ادھر کم سے کم 25 فٹ 26 فٹ پانی کھڑا ہے. بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. 4 پائیاں نہیں ہیں, بسترے نہیں ہیں, تو برتن نہیں ہیں, تو ہمارا تو سارا جو سامان تھا وہیں ڈوب گیا. یہ جو بیڈ پڑے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی سے لیے ہیں, کسی نے دیے ہیں. دریائے راوی بپھرا تو لاہور کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. خون پسینے کی کمائی سے بنائے مکان ڈوب گئے. لوگوں کے پاس نہ سر چھپانے کو چھت رہی, نہ تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے بچے. دہائیوں کی جمع پونجی ایک ہی ریلے میں بہہ گئی. سیلاب سے متاثرہ دربار صاحب کرتارپور میں بحالی کا کام جاری. سیلاب کے دوران دربار صاحب کرتارپور کو شدید نقصان پہنچا تھا. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دربار صاحب کرتارپور کے دورے کے دوران جلد مکمل بحالی کی یقین دہانی کروائی تھی. پاک فوج اور سول انتظامیہ کی جانب سے دربار صاحب کرتارپور میں پانی کی فوری نکاسی کی گئی تھی. پورے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, پورے پاکستان کے فائدے کو پیچھے نہیں دھکیل سکتا. جب پاکستان کا فائدہ ہے تو پاکستان کے فائدے کو پیچھے نہیں دھکیلا جا سکتا کسی کی اپنی ذاتی یا صوبائیت یا چھوٹے لیول کی کسی طرح کی کنسرن کی وجہ سے. کالا باغ ڈیم منصوبہ اشد ضرورت ہے. ڈیم سے 3 صوبے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم نہ بنانا آئندہ نسلوں سے زیادتی ہوگی. صوبہ بجلی دے رہا ہے لیکن نیشنل گریڈ ہمیں بجلی نہیں دے رہا. خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جس نے IMF کا ہدف پورا کیا. گورنر کو KP ہاؤس سے نکال سکتا ہوں کیونکہ وہ گھر صوبائی حکومت کی ملکیت ہے. اب سیلاب یہاں سے سندھ جا رہا ہے. اب سندھ کے اندر بھی افیکٹ کرے گا تو ہمیں اتنی تکلیف ہے جتنی پنجاب کے لوگوں کے لیے تکلیف ہے. سو ہمیں سب صوبوں کو, میں نے جیسے پہلے کہا کہ بیٹھ کر جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہیے. علی امین گنڈاپور کے کالا باغ ڈیم کے بیان سے پہلی بار متفق ہوں. سندھ میں سیلاب آتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوگی, بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہوگا. ڈیمز ناگزیر ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ بارش اور سیلاب ڈبل چیلنج ہیں. تریموں کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے. سیلاب متاثرہ علاقوں میں امراض پھیلنے کا خدشہ ہے. سندھ میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر سپر فلڈ کا خدشہ. صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کی علاقہ مکینوں سے محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی اپیل. کہا کہ 1-2 روز میں سیلابی ریلا گڈو بیراج سے گزرے گا. اس وقت انخلا ممکن ہوگا مگر تاخیر کی صورت مشکل پیش آ سکتی ہے. احتیاط پچھتانے سے بہتر ہے. انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ سندھ حکومت اپنے بہن بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی. چین کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی حمایت. بیجنگ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, فیلڈ مارشل عاصم منیر اور دیگر وزراء بھی ملاقات میں موجود. شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد. شہباز شریف نے شی جن پنگ کی بصیرت اور قیادت کو خراج تحسین پیش کیا. کہا پاکستان کو چین کی ترقی اور جدیدیت پر فخر ہے. صدر شی جن پنگ نے کہا کہ چین پاکستان کی معیشت کے تمام شعبوں میں تعاون جاری رکھے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت.
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। रूसी सदर का पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर अफसोस का इजहार। कहा पाकिस्तान को कुदरती आफात का सामना है, उम्मीद है पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम सैलाबी सूरत हाल पर काबू पाने में कामयाब होंगे। व्लादिमीर पुतिन का मुख्तलिफ शोबों में मिलकर आगे बढ़ने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रूस से ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं और रूस से तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली का फ़रोग़ चाहता है। ज़राअत, तवानाई, सनत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आज़म की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराह नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। सियासी मौशरी सूरत हाल, पार्लिमानी उमूर और हालिया कानून साजी पर तफसीली तबादला ख्याल। अयाज सादिक ने नवाज शरीफ को अहम आइनी और कानूनी उमूर से आगाह किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ों का मामला भी ज़ेर बहस आया। नवाज शरीफ ने कहा कि पार्लियामेंट की मजबूती ही जमहूरियत की मजबूती है। हम यहाँ पर बैठ के ब्यूरोक्रेसी को गालम गलोच कर रहे होते हैं, अपनी शोहरत के लिए अपने ही ऐवान पे इल्जाम तराशी कर रहे होते हैं, कभी हम अपने ही निज़ाम को हाइब्रिड निज़ाम कह रहे होते हैं। जनाब स्पीकर, बल्दियाती अदारे जो है हमारे मुल्क में बिल्कुल जो है वो बेदस्तोपा है, पंजाब में तो है ही नहीं है। कौमी असम्बली में हुकूमती बेंचेस में भी दरारें पड़ने लगीं। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने वजीर दिफा को आड़े हाथों ले लिया। ख्वाजा आसिफ को अपोजिशन बेंचेस पर बैठने का मशवरा भी दे डाला। कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल करते हुए हनीफ अब्बासी का कहना था कि कभी निज़ाम को हाइब्रिड कह रहे हैं, कभी अपनों पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं। आप भी 40 साल से इस निज़ाम का हिस्सा हैं, हर किसी को वायरल होने का शौक़ है। हनीफ अब्बासी का कहना था कि हम ब्यूरोक्रेसी को गालम गलोच करना मामूल बना चुके हैं। हमने बड़े बड़े पुल और अस्पताल बनाए लेकिन किसी कंट्रैक्टर पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। ऐसे बयानात देने हैं तो हुकूमत से उठकर अपोजिशन में चले जाएं। जंग सितंबर के दूसरे दिन भारतीय वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान को धमकी दी। साथ ही एतराफ़ किया कि पाकिस्तानी अफवाज ने 4 भारतीय तैयारों को मार गिराया। सदर अय्यूब ने पाकिस्तानी कौम से खिताब किया, कहा जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाक फौज ने मकबूजा कश्मीर के इलाके सोनामर्ग के नज़दीक भारतीय प्लाटून का मुकम्मल सफाया किया। झंब में भारत के 15 टैंक कब्जे में लेकर 150 भारतीय फौजियों को कैदी बनाया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारतीय हुकूमत की नाकामियाँ। इजलास से वापसी पर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की बॉडी लैंग्वेज ने सब कुछ कह दिया। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के चेहरे पर मायूसी, सफारती तन्हाई और शिकस्त के आसार नुमायाँ। सरबराही इजलास के दौरान गैर पेशावराना रवैये ने मोदी की अहमियत पर सवालात उठा दिए। SCO इजलास के दौरान भारतीय वज़ीर आज़म चीन और रूस के सुदूर के साथ बेहतरीन ताल्लुकात का ढोंग रचाते रहे। अमित शाह जोड़ी का जवाल शुरू। बीजेपी सल्तनत में दरारें पड़ने लगीं। बिहार इंतखाबात बीजेपी के लिए मौत या जिंदगी का इम्तिहान साबित होंगे। दिवार ने चश्मकुशा तहरीर में बता दिया। बीजेपी 15 रियासतों में हुकूमत के बावजूद अवामी हिमायत तेज़ी से खो रही है। इंडियन चीफ जस्टिस को इंतखाबी कमीशन की तकरीरी कमेटी से निकालना मोदी का मुतनाज़ा कदम था। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम यौम दिफा और शौदा की मुनासबत से पेशावर के मुख्तलिफ स्कूलों में तकारीब का इनेकाद किया गया। पाक फौज के ऑफिसर्स और जवानों ने शिरकत करके बच्चों की हौसला अफजाई की। बच्चों ने फौजी अफसरान के साथ मिलकर परचम कुशाई की। कराची वाले हो जाएं होशियार, अब होंगे चालान पर चालान। 1 अक्टूबर से नया ट्रैफिक निज़ाम मुतारिफ करवाने का फैसला। अब शहर भर की सड़कों पर कैमरे ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों की शनाख्त करेंगे। इस इक़दाम का मकसद रिश्वत, सिफारिश और बहस के बगैर ट्रैफिक के कानून को बेहतर तरीके से नाफिज करना है। शहरियों का ट्रैफिक कानून के नए निज़ाम पर मिला जुला रद्द अमल। किसी ने मुस्बत कदम कहा तो किसी ने सख्त
और पेचीदा करार दे दिया। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां उरूज पर, सब्ज परचम, झंडियों और रंग बिरंगे कुमकुमों की बहारें, गली गली, करिया करिया, नगर नगर दुरूद व सलाम की सदाएं। मुल्क भर में मिलाद की महफिलें भी सजाई जा रही हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पर दर्स व बयानात भी जारी। पंजाब में ईद मिलादुन नबी मजहबी जोश व खरोश और अकीदत से मनाने का फैसला, वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने खुसूसी तौर पर मंजूरी दे दी। सैलाब से मुतासर इलाकों के लोगों को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियों में शरीक करने की हिदायत। मरियम नवाज़ ने कहा कि पंजाब के तमाम अजला के सैलाब मुतासरीन में मिठाई तकसीम की जाएगी। जुमे को स्कूल असम्बली में सरवर कायनात के हुजूर हदिया नात पेश किया जाएगा। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और स्कूलों में महफिल मिलाद में खुसूसी तौर पर मुल्क व कौम की सलामती, सैलाब ज़दा इलाकों के अवाम के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। सहबुल की सीरीज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान मध्य मुकाबले। शारजाह में अफगानिस्तान की टॉस जीत कर बैटिंग, कौमी टीम पॉइंट टेबल पर 4 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर। पाकिस्तान ने सीरीज में 2 मैचों में फतह अपने नाम की। पहले मैच में अफगानिस्तान और दूसरे मैच में UAE को शिकस्त से 2-4 किया। और ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क T20 इंटरनेशनल से रिटायर। मिचेल स्टार्क ने कहा, टेस्ट क्रिकेट मेरी हमेशा सबसे ज़्यादा तरजीह रही। इंडिया टेस्ट टूर, एशेज़ और वनडे वर्ल्ड कप 2027 में ताज़ादम होकर परफॉर्म करूंगा। मिचेल स्टार्क ने 65 T20 मैचेस में 79 विकेटें ली हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।